پیٹ کی گیس سے نجات چاہتے ہو تو روزانہ 2 کھجوریں کھا لیا کرو، گیس کا مسئلہ حل ہو جائے گا، پیٹ پھولنا ختم ہو جائے گا اور بدہضمی کا مسئلہ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اقتدار، طاقت اور دولت ملنے پر لوگ نہیں بدلتے بلکہ بے نقاب ہو جاتے ہیں۔ جن لوگوں کو بھوک نہ لگتی ہو وہ نہار منہ کیلا کھا لیا کریں، بھوک لگنا شروع ہو جائے گی۔ سمندری نمک چاٹنے سے وزن کم ہوتا ہے۔ جو لوگ زیادہ وقت بیٹھ کر گزارتے ہیں اور ورزش نہیں کرتے وہ محنت والے کاموں سے دور رہتے ہیں، ایسے افراد کو فالج ہونے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ جو اور باجرے کی روٹی کھانے سے انسان ہمیشہ جوان نظر آتا ہے۔ انار کھانے سے آپ کی بنائی کمزور نہیں ہوتی۔ جو لوگ مسلسل ڈپریشن میں رہتے ہیں ان کے چہروں پر جریاں جلد پڑنے لگتی ہیں، اس لیے آپ ڈپریشن کو کنٹرول کرنا سیکھیں تاکہ آپ کی عمر میں اضافہ ہو اور آپ کے چہرے پر جریاں کبھی نہ پڑیں۔ خالی پیٹ کبھی بھی زیادہ ٹھنڈا پانی استعمال مت کریں، اس سے ہارٹ اٹیک کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ جو لوگ ہر وقت سوتے ہیں ان پر موٹاپا جلدی حاوی ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو معدے کی کمزوری ہو جائے تو ساگودانہ 1 کپ دودھ میں پکا کر کھائیں، انشاءاللہ چند دنوں میں معدے کی کمزوری دور ہو جائے گی۔ نہار منہ نیم گرم پانی پینے سے آپ کے دانت مضبوط ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا رزق 7 نسلوں تک جائے تو رات کو سونے سے قبل عشاء کی نماز کے بعد وضو کر کے درود شریف پڑھ کر یا غنی کو پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ سبز کچی مرچ کھانے سے آپ کی بنائی تیز ہوتی ہے۔ انگور کھایا کریں، اس سے دماغ تیز ہوتا ہے، اس سے آپ کے دماغ کی ذہانت میں اضافہ ہوتا ہے اور یہ جسم میں بیماریوں کے خلاف آپ کی قوت مدافعت کو بڑھاتا ہے۔ اگر بھوک کم لگتی ہے تو روزانہ نہار منہ 1 کچی گاجر کھائیں، کھانے کے بعد 1 دانہ کھجور کھا لیا کریں۔ اگر آپ کی نظر کمزور ہے، خون کی کمی ہے، بال کمزور ہیں اور بال گرتے ہیں تو اس کے لیے روزانہ 3 سے 4 دانے انجیر کے نہار منہ لازمی کھائیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ نیند کی کمی کی وجہ سے آپ 10 سال پہلے بوڑھے ہو سکتے ہیں؟ فالسا کھانے سے معدے کی جلن اور خارش دونوں ختم ہو جاتی ہیں۔ چھوٹے بچوں کو کیلا کھلاؤ، اس سے ان کی ہڈیاں مضبوط رہیں گی۔ کھانے کے بعد 1 لونگ کھا لینے سے تذابیت کا مسئلہ نہیں ہوتا، منہ میں ڈال لو، اس سے کھانا جلدی ہضم ہو جاتا ہے اور پیٹ پھولنے سے بچا رہتا ہے۔ کھیرے کا استعمال شوگر کے مریضوں کے لیے بے حد مفید ہے۔ اگر جسم پر دانے نکل آئیں تو کریلے کا پانی نکال کر پئیں، دانے ختم ہو جائیں گے۔ دودھ میں شہد ملا کر پینے سے آپ کی ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ مولی کا پانی چہرے پر لگانے سے کیل، مہاسی اور داغ دھبے ختم ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ گوشت کھا کر ہڈیاں چھت پر پھینک دیتے ہیں وہ سمجھ لیں کہ جلد ان کے گھر میں جنات کا آنا ہو سکتا ہے۔ اگر گھر میں چپکلیاں زیادہ آنے لگیں تو گھر میں پودینے کا پودا لگا دیں۔ کھانے کے بعد تھوڑی سی اجوائن کھانے سے موٹاپا کم ہو جاتا ہے۔ بادام پیس کر کیل مہاسوں پر لگانے سے یہ ختم ہو جاتے ہیں۔ شدید تکلیف میں آدھا چمچ ہلدی دودھ کے ساتھ پینے سے آپ کی تکلیف کم ہو جاتی ہے۔ شام کے وقت پیاز کھانے سے معدہ کمزور ہوتا ہے۔ جو شخص بیر کھاتا ہے اس کی نسل میں بیٹوں کی کمی نہیں ہوتی۔ کیلا کھانے کے بعد 1 دانہ چھوٹی الائچی کھانے سے کیلا فوراً ہضم ہو جاتا ہے۔ کیلا آپ کی قوت دفاع میں اضافہ کرتا ہے اور دماغی کمزوری کو دور کرتا ہے۔ نہار منہ کشمش کھانے والے بندے کو کبھی کوئی بیماری نہیں لگتی۔ بھنڈی کا سالن استعمال کرنے سے خون میں شوگر کی مقدار نہیں بڑھتی۔ صبح نہار منہ روزانہ 21 بادام کھا لیا کریں، اس سے دماغ کی کمزوری چند دنوں میں ختم ہو جائے گی۔ اگر بدن کی سوجن کا کوئی مسئلہ ہو تو لوکی کا سالن بنا کر کھایا کریں۔ پیشاب میں جلن ہوتی ہے تو وہ ناشتے سے 1 گھنٹہ قبل جوائن کا سفوف پانی کے ساتھ استعمال کریں۔ جو اور چنے کا آٹا ملا کر اس کی روٹی بنا کر شوگر والے مریض کھا لیں تو اس کی شوگر کنٹرول میں رہیں گی۔ روزانہ قرآن شریف کی تلاوت کیا کریں، اس سے آپ کی بنائی تیز ہوتی ہے۔ رات کو زیادہ پانی استعمال کرنے سے آپ کی طاقت میں کمی آ جاتی ہے۔ خارش کو دور بھگانا ہے تو ناریل کے تیل میں کافور ملا کر متاثرہ حصے پر لگائیں، 2 دنوں میں خارش
दूर हो जाएगी और दाग धब्बे भी नहीं पड़ेंगे। जिनको दिल का मर्ज हो उनको सब्ज अलासी का इस्तेमाल लाजमी किया करें। प्याज की खुशबू सूंघने से आपका दिल मजबूत होता है। दोपहर के वक्त प्याज खाने से मैदे को ताकत मिलती है और शाम के वक्त प्याज खाने से आपका मैदा कमज़ोर होता है। जिनको शुगर का मर्ज हो उनको चीनी की जगह गुड़ का इस्तेमाल करवाएं। औरत सोते वक्त दूध के साथ एक खजूर खा ले। 50 साल वाली औरत भी 17 साल जैसी जवान नजर आएगी। सोने से पहले सर में कंघी कर लिया करो, इससे बाल नहीं गिरेंगे। प्याज खाने से मतली और पेट से जुड़े मसाइल नहीं होते। ठंडा दूध सेहत के लिए फ़ायदेमंद है। अगर रात को पीने से ग्रेज करें। खाने के बाद प्याज का इस्तेमाल खून में शुगर के लेवल को कंट्रोल करता है। प्याज दिन में खाएं। रात के खाने के साथ प्याज का इस्तेमाल हरगिज़ ना करें। फालसे का इस्तेमाल आपके खून को साफ करता है। रात को चावल खाना पेट की चर्बी में इजाफा करता है। अगर मौसम बदलने के बाद ज़ुकाम का मसला हो जाए तो गोश्त का बचा हुआ शोरबा पीने से ज़ुकाम फौरी ठीक हो जाएगा। ज़्यादा परेशान रहने से बीमारियां जन्म लेती हैं। ज़्यादा गर्म खाना आपके दिल को और फेफड़ों को कमज़ोर कर देता है। टूटे हुए बर्तन में खाना याददाश्त को कमज़ोर कर देता है। रात के वक्त ठंडे पानी से गुस्ल करने से बदन कमज़ोर होता है। इंसान सिर्फ मक्खन और आलू खाकर ज़िंदा रह सकता है क्योंकि उनमें तमाम ग़िज़ाई इंतज़ाम मौजूद है जो ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी है। कुर्बानी का गोश्त भी खाएं और मुख्तलिफ बीमारियों से भी बचें। ब्लड प्रेशर बढ़े तो सब्ज़ इलायची, सूंड, सफ़ेद ज़ीरे का कावा बनाकर पिएं। लूज़ मोशन और मतली वगैरह हो तो चंद कतरे लीमू, लौंग और पुदीने का कावा बनाकर लाजमी पिएं। धूप की वजह से बहुत सारी औरतों का चेहरा बेरौनक हो जाता है। ऐसी औरतों को बकरी के दूध की दही बनाकर लीमू निचोड़कर रात को रोज़ाना सोते वक्त अपने चेहरे का मसाज करना चाहिए। ज़्यादा गर्म चीज़ें खा लेने से फौरी बाद ठंडी चीज़ खाने से एहतियात करें। क्या आपको मालूम है कि ठंडे कमरे में सोने से आपको वज़न कम करने में मदद मिलती है? जब इंसान टेंशन फ्री होकर सोता है तो उसका वज़न कम होने लगता है। अगर रोज़ाना 5 दाने अंजीर के खा लिए जाएँ तो इससे गुर्दे की पथरी निकल आती है। सोने से पहले इसबगोल का छिलका इस्तेमाल करो या नीम गर्म पानी पी लिया करो, इससे गुर्दों की सफाई हो जाती है। अगर लंबी ज़िंदगी गुजारना चाहते हो और देर तक जवान रहना चाहते हो तो सादा सी खुराक खाओ, इससे आप बहुत कम बीमार होंगे और लंबी ज़िंदगी जियोगे। करेले का पानी चेहरे पर लगाने से चेहरे के दाग धब्बे दूर हो जाते हैं। नहार में खजूर इस्तेमाल कर ली जाए तो आपको ग्लूकोज की कमी नहीं होती और आपका पूरा दिन अच्छा गुजरता है। जो बच्चे जल्दी बोलना शुरू कर देते हैं, ऐसे बच्चों की याददाश्त बहुत तेज़ होती है और वो बच्चे बड़े होकर भी बहुत ज़हीन निकलते हैं। शाम के वक्त केला इस्तेमाल करने से सीने में बगलम पैदा होती है और अगर दिन के वक्त 3 केले खा लिए जाएं तो इंसान की हड्डियां मजबूत होने लगती हैं। हल्दी दूध में डालकर पीने से सर का दर्द फौरी ख़त्म हो जाता है। ज़्यादा नमक का इस्तेमाल दिल को कमज़ोर करता है और पट्ठों में दर्द की वजह बनता है। भुने हुए चने खाने से जोड़ों का दर्द ठीक हो जाता है। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा गिरने लगे हैं तो सौंफ इस्तेमाल करें। ज़्यादा ठंडा पानी इस्तेमाल करने से दिमाग पर असर पड़ता है और दिमाग का फालज हो सकता है। रात की रानी का फूल सूंघने से आपकी थकावट ख़त्म हो जाती है। लहसुन नमक में डालकर पीने से पेट का दर्द ख़त्म होता है। तरबूज खाने के बाद थोड़ा सा नमक चाट लें, इस तरह हजमी नहीं होती। अगर आप अपने गुर्दों को तवाना रखना चाहते हैं तो सोते वक्त बाथरूम से हो लिया करें। जो हामला औरत खरबूजे ज़्यादा खाती है उसका बच्चा गोल मटोल और गोरा पैदा होता है। सोने से पहले चहलकदमी की आदत बना लो, कभी दिल की बीमारी नहीं होगी। मीठा ज़्यादा खाने से जल्दी बुढ़ापा आ जाता है। कच्चा दूध मत पिया करो, आपकी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएंगी। हाथ पाँव अगर सुन हो जाने का मसला हो तो 1 चम्मच शहद और अदरक और नींबू का रस 1 गिलास पानी में शामिल करके पी लें।
इंशाल्लाह इससे अफाका होगा। चावलों के उबले हुए पानी से बालों को धोने से बाल गिरना बंद हो जाते हैं। 4-5 दिन कच्चा प्याज खाने से पेट के तमाम कीड़े मर जाते हैं। बरसात के मौसम में कच्चा प्याज खाने से आप हैज़े जैसी बीमारियों से बिल्कुल महफूज रह सकते हैं। प्याज ब्लड प्रेशर, दिल और मैदे की बीमारियों और फालज के मर्ज से महफूज रखता है। सौंफ की चाय पीने से नज़र की कमज़ोरी दूर हो जाती है। कब्ज़ हो जाए तो बकरी के दूध में छोटी इलायची डालकर पी लें, इससे फौरी कब्ज़ आपकी दूर या ख़त्म हो जाएगी। कच्चा लहसुन खाने से आपका दिल मजबूत होगा। जब भी थकावट और परेशानी हो तो अदरक वाली चाय पिएं, इंशाल्लाह आराम आ जाएगा। लंबी ज़िंदगी जीनी है तो रोज़ाना सुबह नहार मुँह नारियल और खजूर लाजमी खाएं। पेट में बनने वाली गैस को जल्दी खारिज करो वरना यादाश्त पर असर पड़ेगा। नमक से स्किन का मसाज करने से स्किन अंदर तक साफ़ हो जाती है और चेहरे पर रौनक आ जाती है। चावल ज़्यादा खाने से परहेज़ किया करें वरना आपके जिगर को खून बनाने में दुश्वारी और मुश्किल होगी। खाना खाकर फौरी नहाया मत करें वरना आपका पेट बाहर निकल आएगा। मोटी औरत सोने से कबल नाक में लहसुन का कतरा डाल दिया करें, इससे चर्बी का खात्मा हो जाएगा और वो हमेशा दुबली पतली और स्मार्ट नज़र आएगी। फटकड़ी के इस्तेमाल से चेहरे पर नमूदार लकीरें और झुर्रियों का खात्मा हो जाता है। याद रखें कि कलेजी, पाए और मगज़ में कोलेस्ट्रॉल की मकदार बहुत ज़्यादा पाई जाती है। मेथी दाना रोज़ाना बकौर इस्तेमाल करने से शुगर जड़ से ख़त्म हो जाती है। बादाम खाने से आपका दिमाग तेज़ और भूलने की बीमारी ख़त्म हो जाती है। काजू खाने से जिल्द बहुत अच्छी रहती है और रोज़ाना इसको इस्तेमाल करने से मैदे की जलन और तजाबियत ख़त्म हो जाती है। जो लोग बहुत जल्द आपके साथ याराना बनाने में कामयाब हो जाते हैं, याद रखें ऐसे ही लोग आपको बहुत जल्द धोखे भी देते हैं। आप अपने पौधों के गमलों में चुटकी चीनी की डालकर इनकी ज़िंदगी को तवील कर सकते हैं। अगर पौधे मुरझा जाते हैं या बड़े ना होते हों तो पानी में चीनी मिलाकर पौधों के अंदर डाल दें। करेले की सब्ज़ी का पानी चेहरे पर लगा दो, 2 हफ्तों में आपका चेहरा सफ़ेद और चमकदार हो जाएगा। जर्मन में छोटे बच्चों को दवाइयाँ नहीं दी जाती, बल्कि अगर कोई मसला हो तो उन्हें सौंफ खिलाई जाती है। अगर पेट में दर्द हो और खाना हजम ना हो रहा हो तो खाने के बाद 1 चुटकी सौंफ खा लें, हाजमा ठीक हो जाएगा। बादाम, किशमिश और केला दूध में शामिल करके पीने से ताकत में इजाफा होता है और जिस्मानी कमज़ोरी दूर हो जाती है। सब्ज़ चाय पीने से हाजमा बेहतर रहता है, मैदे की तजाबियत और दर्द नहीं होता। ताकत को बढ़ाने के लिए प्याज का इस्तेमाल दोपहर के खाने के साथ करना चाहिए। बाकायदगी से प्याज का इस्तेमाल आपकी अज़वाजी ज़िंदगी को खुशहाल और बेहतर बना देता है। खून में शुगर की सतह को कंट्रोल और कोलेस्ट्रॉल को नॉर्मल रखने में प्याज मदद देता है। दाल माश अच्छी तरह साफ़ करके धोएं और सिखा कर इसे पीस लें। नहार मुँह ये सफ़ूफ आधा चाय का चम्मच खा लें, इससे कमर का दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अंजीर खाओ क्योंकि ये बवासीर को जड़ से ख़त्म करती है और जोड़ों के दर्द में मुफीद है। कोई कांटा चुभे या ज़ख्म हो जाए तो तब भी मेहंदी का इस्तेमाल करो। अनार को इसकी अंदरूनी छिलके समेत खाओ क्योंकि ये मैदे की सफाई करता है। 50 ग्राम अदरक, 10 ग्राम पुदीना, 50 ग्राम मूली के पत्ते 1 लीटर पानी में 2 घंटों के बाद भिगो दें। पूरे दिन वक्फे से इससे पानी लेते रहें, इससे जिस्म की सफाई के साथ साथ वज़न में कमी भी होगी। अंजीर खून के सुर्ख ज़रात में इजाफा करती है और आपके खून को साफ़ करती है। रोज़ाना 5 दाने अंजीर खाने से गुर्दे की पथरी निकल जाती है। पेशाब में अगर जलन हो तो नाश्ते से 1 घंटा पहले अजवाइन का पानी के साथ इस्तेमाल करें। काजू खाने से आपकी जिल्द बेहतर हो जाती है और अगर अपने पौधों की जड़ें मजबूत बनानी है तो उनके गमलों में लस्सी डाल दें। नहार मुँह सौंफ वाला कावा पीने से कमर दर्द ख़त्म हो जाता है। जिन्हें शुगर का मसला है वो रोज़ाना 1 चम्मच करेले का जूस पी लें, इंशाल्लाह शफा मिलेगी। अगर चाहते हो कि वक़्त में बरकत हो और काम जल्दी ख़त्म हो जाए तो सूरतुल कौसर की तिलावत किया करें। रात को सोने से पहले चाय पीना नींद पर असर डालता है। चहलकदमी से पहले कोई एक फल
کھا لینے سے ہاضمہ خراب نہیں ہوتا. دودھ میں گڑ شامل کر کے پینے سے ہاضمہ بہتر ہوتا ہے. گردے کی پتھری سے نجات چاہتے ہیں تو چاول کم کھائیں. قبض کے مریض بڑے گوشت کا استعمال نہ کریں. بادام کا تیل گالوں پر لگانے سے جلد نرم اور ملائم ہو جاتی ہے.